Okay, once again, Assalamu alaikum and good morning. Yesterday we have done with this part, that is we have gone through the system architecture of GSM. We have gone through the system architecture of GSM, and then we have seen all the modules which are present in this architecture. Like you can start from the left hand side, like ME, that is mobile equipment, and in your mobile equipment there is a SIM. Okay, in your mobile there is a SIM from which you can avail all the services which is being provided by the network service provider. Then we have BTS, that is base transceiver station, which is which has the immediate interaction with the mobile equipment which are located in your areas, so that it can reach to the next level. Then we have BSCs, that is base station controller. Okay, and these base station controller handle multiple BTS. Okay, these multiple antennas are being covered by the one BSC, and then these multiple VACs are being handled by the one MSC, that is mobile switching center. Okay, and this mobile switching center makes use of different databases and components. We can say HLR, VLR, EIR. These are the three registers, or we can say databases, which it refer. And then it has authentication center also, and OMC, that is operation maintenance center. Okay, so these two different modules are also present, so that the different queries can be solved. Okay, so different queries of different users can be solved easily and efficiently. So MSc make use of all these components like HLR, VLR, EIR, AUC, and OMC. So we need to remember these five component. Out of these five, uh, three components are like databases in which the information of user is maintained, and the remaining two, AUC and OMCs, are the centers which maintain and which handle the queries and the resolution part, basically. Okay, your MSC is also connected with the public network like BSTN, ISDN data network, we can say. So it is connected to all the public network from which it can provide these public network facilities to the users also. Okay, so this is the complete, we can say, architecture of JSM, and I think ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और ये डायग्राम हम लोग आराम से समझ सकते हैं. ठीक है, एंड आई होप आप सबको समझा भी होगा ये डायग्राम. तो इतना इतना सिंपल डायग्राम है. ओके, initially what we had discussed regarding this system architecture, that your GSM consists of, your GSM comprises of three different subsystem. One is RSS, second is NSS, third is OSS. If you remember, RNO, ये याद रखना है आपको. R for radio subsystem, N for network switching subsystem, and then your OSS is your operation and maintenance subsystem. तो ये जो है आपका, इसको हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सब सिस्टम, दैट इज आरएसएस. ओके, इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, क्या क्या काम है उनके, दैट विल स्टार्ट विद इट. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रेडियो सब सिस्टम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर है. रेडियो सब सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी उसके उसके जो सब सिस्टम है, उसमें है बेस स्टेशन सब सिस्टम, उसके बाद में है बेस ट्रांसीवर स्टेशन बीटीएस, देन बेस स्टेशन कंट्रोलर. ओके, ये तीनों चीज़ें, और लास्ट में आपका मोबाइल स्टेशन. तो ये चीज़ें जो आती हैं वो आपके रेडियो सब सिस्टम में आती हैं. ठीक है, थोड़ा सा पहले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा. तो इन दिस डायग्राम यू कैन इजीली सी कि योर मोबाइल स्टेशन, सी दिस इज MS इज रिटन ओवर हियर. सो योर मोबाइल स्टेशन पार्ट, योर BTS पार्ट एंड BSC पार्ट, दोनों को मिलाने के बाद में बनता है बेसिक स्टेशन सब सिस्टम. ओके, तो यहाँ पर सब सिस्टम में काफ़ी कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको याद रखना है उसको. ठीक है, so the broad categorization, the broad composition is like your GSM. ठीक है, RNO आपको याद में रखना है. ठीक है, रेडियो नेटवर्क एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस सब सिस्टम. ठीक है, तो ये आपको तीन चीज याद में रखना है. तीनों के अंदर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वन की, दैट इज रेडियो सब सिस्टम. सो रेडियो सब सिस्टम में कौन कौन आता है आपका, बेसिक स्टेशन सब सिस्टम आता है, और बेसिक सब और आपका मोबाइल स्टेशन आता है. ठीक है, फिर मोबाइल स्टेशन में कौन है आपका, ये तो आपका मोबाइल इक्विपमेंट ही है. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट लेटर, देन बेसिक स्टेशन सब सिस्टम के अंदर यू हैव BTS एंड यू हैव BSC. तो दो मॉड्यूल इसके अंदर है. ठीक है, तो इस तरीके से उसने इसको एक्सप्लेन किया. So let us start with the first one, that is radio subsystem.
the name itself indicating that your radio subsystem comprises all specific entities. Okay, रेडियो सबसिस्टम मतलब रेडियो एंटिटीज मतलब कि जो जितना आपका कनेक्शन है, जहाँ से मतलब जो आपका इंट्रैक्शन हो, दैट इंट्रैक्शन विल बी अ रेडियो इंटरफेस बेस्ड इंट्रैक्शन। तो इसके लिए उसको रेडियो सबसिस्टम करके नाम दिया। दैट इज द मोबाइल स्टेशन एंड द बेस स्टेशन सबसिस्टम। मतलब कि कहने का है, देखो हम लोग को बार बार ये डायग्राम पे आना पड़ेगा, तो आई थिंक मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ बिकॉज वो बहुत पीछे आना आना जाना बहुत हो रहेगा। सो आई थिंक ये भी विजिबल रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो योर रेडियो सबसिस्टम के अंदर जो आपका मोबाइल स्टेशन एंड द बेस स्टेशन सबसिस्टम, ओके। तो बेस स्टेशन या फिर बेसिक स्टेशन सबसिस्टम, ये आपका पूरा का पूरा रेडियो सबसिस्टम है। RSS ये पूरा कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है। नाउ योर RSS comprises of मोबाइल स्टेशन एंड बेसिक स्टेशन सबसिस्टम, and again your basic station subsystem consists of BTS and BSC. In this way you need to remember, okay। मतलब है सब कुछ डायग्राम के अंदर। डायग्राम अगर आपको याद रहा ना, सो यू कैन राइट इट डाउन इजीली, ओके। अगर डायग्राम याद नहीं तो फिर आप कहीं कुछ नहीं लिख सकते, डायग्राम याद रखना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं बोला हूँ आपको, कल भी बोला हूँ कि जस्ट प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर डायग्राम for number of time so that you can remember the diagram and then you can easily write down the answer of this question also, okay। तो हम लोग यहाँ पर थे, तो MS आपका मोबाइल स्टेशन एंड BSS, ओके। Then figure shows the connection between the RSS and the NSS via the A interface, okay। अब यहाँ पर A interface कहाँ पर है आपका, A interface यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका RSS और ये NSS, समझ में आ रही है बात आप लोग को। ये आपका RSS, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में अभी मैंने लाया नहीं हूँ, तो यहाँ से आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट दैट इज योर RSS, ओके। RSS, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज जो आपका है यहाँ पर, ये आपका NSS है, ठीक है। तो देखो ये चीज आप सर आप लोग बोलेंगे कि सर ये चीज तो कॉमन है कि RSS एंड NSS आर कनेक्टेड विद द A इंटरफेस, बट इस चीज को भी लिखना पड़ेगा, ताकि बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग को लिख के बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपका RSS और NSS दोनों कनेक्टेड है A इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एबिस इंटरफेस भी है, जो कि BTS और BSC को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा मोबाइल इक्विपमेंट को और BTS को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में UM इंटरफेस है, दैट इज उसको रीड करते हैं UM इंटरफेस, बट पढ़ने के लिए मतलब कि लिखने के लिए UM लिखते हैं, और बोलने के लिए बोलते हैं मोबाइल यूजर इंटरफेस, ओके। तो ये होगा हमारा। कमिंग टू द बेस स्टेशन सबसिस्टम फर्स्ट, ओके। तो मतलब हम लोग अभी इस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। ये मतलब जो पार्ट है ना आपका, ये बेसिक स्टेशन सबसिस्टम, इसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अभी GSM नेटवर्क कंप्राइजेस मेनी BSSs, ओके। मतलब यू नो दिस इज पॉसिबल दैट के यू मे हैव नंबर ऑफ BSS, ओके। जो हमारा बेस स्टेशन सबसिस्टम है ना, ये हमारे बहुत सारे हों। जैसे कि एग्जांपल आपके, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने बात किया पनवेल सिटी है, ठीक है। तो पनवेल सिटी में हो सकता है कि आपका आपका एक MSC हो और नंबर ऑफ BSCs हो, ठीक है। जैसे ओल्ड पनवेल के अंदर यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड बाय द एरियाज इट्स, सॉरी। सो एरिया के हिसाब से आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल ओल्ड पनवेल के अंदर एक मतलब उन लोग ने दो दो BSCs लगाए हैं, ठीक है। फिर आपके न्यू पनवेल के अंदर 2 या 3 BSCs लगा दिए हैं, बिकॉज एरिया थोड़ा बड़ा है। फिर एक थोड़ा सा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास एक BSC लगाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव टोटल 5 BSCs हो गए, ठीक है। अब इस पूरे पनवेल सिटी को कवर करने के लिए वी हैव 1 MSC, ठीक है। मैं थोड़ा आपको एरिया वाइज बताऊंगा तो शायद थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। So in the complete no Panvel city we are having only one MSC, okay। I'm just giving one example, it is fully based on the intensity of the population, ठीक है। population की density के हिसाब से और area के हिसाब से how many modules are going to be implemented, that is decided, okay। तो अब यहाँ पर अगर आप population ज्यादा है और आप बोलेंगे नहीं ठीक है यहाँ पर एक BTS लगाते हैं, अपने 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 कॉलेज में एक BTS लगाते हैं और एक लगाएंगे पिल्लर्स कॉलेज में, ठीक है। सो वन BTS कैन नॉट कवर दिस मच एरिया। यहाँ से लेकर पिल्लर्स कॉलेज, अपनी कॉलेज से लेकर पिल्लर्स कॉलेज तक के का जो रास्ता है वो इट इज अराउंड आई थिंक
हो सकता है 2 किलोमीटर तो कम से कम रहेगा, ठीक है। एंड योर बीटीएस कैन नॉट कवर 2 किलोमीटर, या 2 किलोमीटर से ज्यादा ही रहेगा, मैं 2 किलोमीटर बोल रहा हूँ, कम से कम भी तो 3 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। आपका बीटीएस क्या कवर करेगा, आपका बीटीएस मैक्सिमम, चलो अंदाजा एक एक अप्रोक्सीमेशन भी लगाएंगे, सो इट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ अराउंड 500 मीटर। तो 1 किलोमीटर का पूरा समझ लो उसने कवर किया, तो इट कैन नॉट गो अप टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो जब इतना नहीं कवर कर सकता, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक ऑन इट, ओके। द इंजीनियर्स आर देयर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, they think and they decide that how much density of the area right now is, what is the density of the area and how and where we can implement these BTS, okay। and also जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया कि वैसे सोसाइटीज मिलना भी चाहिए, तो मतलब जो मतलब थोड़े से हो कि हाँ भाई चलो हमारे इस पे लगा लो, हम लोग देंगे, तो ऐसी सोसाइटीज मिलना भी चाहिए, और नहीं मिली तो फिर उनको उसके हिसाब से उनके टावर्स लगाना पड़ते हैं, टावर्स माउंट करना पड़ते हैं। तो ऐसे मतलब उनको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है बीटीएस का। तो ऐसे उन लोग को एरिया देख देख के बीटीएस लगाएंगे, और उसके हिसाब से फिर उनके बीएससीज भी लगाएंगे, और उसके हिसाब से उनका एमएससी रहेगा। तो आई वाज टॉकिंग लाइक के पूरे पनवेल को कवर करने के लिए तो 1 एमएससी इज देयर, एंड रिगार्डिंग बीएससी, तो भाई साहब एक 2 बीएससी आपका ओल्ड पनवेल कवर कर लिए, 2 बीएससी आपके न्यू पनवेल कवर कर लिए, एक बीएससी में आपका बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड और उसके पास का एरिया कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं थोड़ा आपको इमेजिनरी मॉड्यूल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर ऐसा कर लेते हैं, सो टोटल यू नीड 5 BSCs, okay। You can just imagine the diagram in your mind only, that you have total your Panvel city is being covered by 1 MSC, 5 BSCs, एंड एरिया का नहीं बोल सकता, बिकॉज एरिया की डेंसिटी के हिसाब से आपके बीटीएस इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। एंड ऑल दोज बीएससी, ऑल दोज बीटीएस, फॉर एग्जांपल इन पनवेल सिटी, हम लोग ओल्ड पनवेल की बात, तो ओल्ड पनवेल में हम लोग ने दो दो बीएससी के बारे में सोचे हैं, ओके। सो 2 BSCs विल बी माउंटेड, वन एक तो चलो नाके पे लगा दिए, ओके, एवरीवन नो अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया नाका, एंड देन थोड़ा एक मार्केट एरिया में लगा दिए, ठीक है। सो दो हम लोगों ने बीएससी लगाए। अब हमारे पास में जैसे हर जगह पर हम लोग बीटीएस इंस्टॉल कर सकते हैं। आदिल टावर के पास में एक मतलब जो कॉर्नर है, एक साइड वाला एरिया है, वहां पर हम लोग एक बीटीएस लगा सकते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके नाके पे लगा सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस कवर करके, ऐसे हम लोग को वी हैव टू माउंट नंबर ऑफ बीटीएस, वी हैव टू माउंट नंबर ऑफ बीटीएस विच विल बी कनेक्टिंग टू द बीएससी वन नंबर वन। फिर थोड़ा सा मार्केट के एरिया में आप लोग जाएंगे, तो वहाँ पे जो जितने बीएससी वहाँ पे जितने बीटीएस रहेंगे, सो ऑल दोज बीटीएस विल बी कनेक्टेड टू द बीएससी नंबर 2, ओके। इन द सेम वे हमारा फिर न्यू पनवेल की बात करें, बिकॉज ऑल पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द एरियाज, उनका उनका अब मुझे थोड़ा सा आइडिया था, इसके लिए मैंने बताया, एंड दो पीपल्स हु आर फ्रॉम पनवेल इटसेल्फ, तो उनको थोड़ा सा आइडिया है, बट बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। बट स्टिल थोड़ा सा एरिया के हिसाब से इसको इसको हम लोग वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, but BTS installations are done by the electronics peoples only, electronics engineer जो होते हैं उन लोग ही इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। और उसके बाद में एरिया को देख के वो लोग इंस्टॉलेशन करके कहाँ होना चाहिए, तो सो दैट के ये वाला बीटीएस ये वाली रेंज कवर कर रहा है, तो वो रेंज से बाहर जाके फिर दूसरा बीटीएस, उसका उसका रेडियस कैलकुलेशन, एंड आफ्टर दैट द थर्ड वन, देन फोर्थ वन, एंड सो ऑन, ओके। So in this way the city can be covered, okay। the same way फिर आपके एरिया का देख लो, फॉर एग्जांपल खारगर है आपका दूसरा एरिया है, तो उसके अंदर हिसाब से फिर सेक्टर डिवाइड कर सकते हैं, हर सेक्टर में एक बीटीएस हो गया, एंड दैट बीटीएस विल बी कनेक्टेड टू द one BSC which will be covering various sectors and so on, okay। सो ऐसे इस तरीके से आपका जीएसएम का इंस्टॉलेशन, आपका जीएसएम का आर्किटेक्चर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थे, जीएसएम नेटवर्क कंप्राइजेस मेनी बीएसएस, ओके, मतलब बेसिक स्टेशन सबसिस्टम। तो हमारे पास में बहुत सारे बेसिक स्टेशन सबसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। If you talk about one city, then we may have number of BSS, that is basic station subsystem, and remember our BSS consist of two modules, one is BTS and second is BSC, ठीक है। so they are talking in terms of BSS, that is base station subsystem. Not a big deal. We can talk in terms of BTS and BSCs also. The BSS perform all function necessary to maintain a radio connection to an MS, coding, decoding of voice, and rate adaptation to or from the wireless network part. मतलब आपका जो BSC है, it is performing almost all the tasks. Like देखो, वो आपका जो BSC है वो कहाँ से है, वो यहाँ से है, ठीक है। तो आज मैं लेके आता तो अच्छा रहता।
तो आपका जो BSc है वो समझ लो ये है, ठीक है, तो जो मैंने मार्क किया वो रेड में। सो दिस इज योर BSc, ओके, एंड योर BSc इज कनेक्टेड टू MSc वाया रेडियो इंटरफेस। देखो मैंने इसको थोड़ा सा एरो मार्क करके बताया, यू कैन सी दिस एरो मार्क वाला जो यहाँ पर है, तो ये एरो मार्क के थ्रू बताया, इसका मतलब ये रेडियो इंटरफेसेस है, मतलब यहाँ पे रेडियो कनेक्शन है, मतलब वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है। सो इट मीन्स माई मोबाइल स्टेशन एंड माई BSS, okay, my BSS and my mobile station is connected with the wireless link, or we can say radio link, ठीक है। और उसके बहुत सारे फंक्शंस भी है, एंड दोज फंक्शंस इंक्लूड कोडिंग डिकोडिंग ऑफ वॉइस, जो हमारे वॉइस की जो भी उसकी प्रोसेस है उसके अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग इन्होंने लिखा है, तो वॉइस कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ वॉइस, देन रेट एडेप्टेशन, हाउ मच रेट शुड बी, यू नो व्हाट शुड बी द फ्लो कंट्रोल ऑफ वॉइस फॉर टू एंड फ्रॉम द वायरलेस नेटवर्क। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो यहाँ पे इनको मेंटेन करना होती है, सो दैट देर विल बी अ efficient and we can say a good connection between the mobile station and the base station subsystem, ठीक है। देखो हम लोग डायरेक्टली, मैं अगेन I'm telling you that कि we are just telling कि भाई BSS बोल रहे हैं हम लोग, ओके, but your BSS is again consist of BTS and BSC, that you need to remember and you need to keep in mind, okay। So we are talking in terms of mobile station and basic station subsystem, दोनों के बीच की कनेक्टिविटी हम लोग बता रहे हैं। तो अभी हम लोग बेसिक स्टेशन सबसिस्टम की बात कर रहे थे। नाउ बिसाइड अ BSc द BSS कंटेन्स सेवरल BTS, ओके, तो वही हम लोग की वही बात चली कि या multiple BTS will be connected to one BSc. For example, here it has been shown that these two BTS are these two BTS, that is base transceiver stations are, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें देखो हर बार आपको हमेशा थोड़े से सिमिलर वर्ड सुनने में आएंगे, BTS, BSc, BSS, ओके, तो ये बार बार चीजें आएंगी, तो थोड़ा सा ये इतना खाली एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन रखो कि एक बड़ा मॉड्यूल जो है ना आपका BSS है, बेसिक स्टेशन सब सिस्टम, और उसके अंदर आपके BTS एंड BSCs है, ठीक है। तो और ये भी आपको हिरार्चिकल मॉडल है, तो ये भी आपको आइडिया है कि इफ दिस इज अ हिरार्चिकल मॉडल इन दिस वे, यहाँ से आपका हिरार्चिकल मॉडल है, तो इसके अंदर हम लोग क्या रहेगा कि आर वेरियस मोबाइल स्टेशन, आर वेरियस मोबाइल इक्विपमेंट विल बी कनेक्टेड टू वन BTS, ओके, आर वेरियस BTS विल बी कनेक्टेड टू वन BSc, ओके, लाइक ट्री लाइक आर्किटेक्चर आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। एंड देन वेरियस BTS विल बी कनेक्टेड टू वन BSc, देन वेरियस BSCs विल बी कनेक्टेड टू वन MSc, एंड हो सकता है जाके हर जगह के मल्टीपल जो cities के नेटवर्क है, मल्टीपल MSCs will be connected with each other, okay। So किसी को कुछ बोलना है, किसी की आवाज आई थी शायद, ओके। तो ये था आपका BSc के बारे में, सॉरी BSS के बारे में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जस्ट तो मतलब स्मॉल स्मॉल थियरी है, और स्मॉल जो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। कमिंग टू द BTS, ओके, तो बेस ट्रांसीवर स्टेशन, तो यहाँ पर भाई साहब आपने देखा BTS यहाँ पर है, ओके। सो BTS आर द इमीडिएट मॉड्यूल विच टू विच योर मोबाइल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड। आपका BTS इज द वेरी नेक्स्ट मॉड्यूल टू विच योर मोबाइल स्टेशन और योर मोबाइल इक्विपमेंट इज कनेक्टेड, ओके। आपका मोबाइल इक्विपमेंट BSc को कनेक्टेड नहीं, ठीक है। Your mobile station is not directly connected to the BSc, it is directly connected to the BTS, okay, so that we need to keep in mind. Coming to the BTS, a BTS comprises all radio equipment, that is antennas, signal processing, amplifiers necessary for radio transmission. देखो now it is very very important, okay। Whenever देखो see यहाँ पर जो आप जो connection देखोगे ना, the connection between BTS and BSc, just try to focus on this particular diagram, that there is a connection between BTS and BSc. So that connection may be a wired connection or maybe wireless connection, okay, but most of the time this is the wired connection only, because we need a strong connection, and you also know that कि आपका जो वायरलेस कनेक्शन से ज्यादा जो थोड़ा सा ड्यूरेबल कनेक्शन होता है वो आपका वायर्ड कनेक्शन होता है। people used to prefer you know people used to prefer using the LAN port, okay, LAN wire use करके इंटरनेट यूज करना पसंद करते हैं instead of having the Wi-Fi routers, okay, because we get less speed in this particular router, but आपका जो यहाँ पर मिलेंगे आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, ठीक है, मतलब LAN से अच्छी स्पीड मिलेगी आपको, ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। हो सकता है पावर चला गया या फिर कुछ ऐसा इशू हो गया, वाईफाई आपका बंद हो गया, आपका डिसकनेक्टिविटी होगी, बट नेटवर्क आपका ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा। So people used to prefer this wired connection instead of the wireless connection.
So when we talk about there's an interaction between BTS and BSC, okay, so that BTS and BSCs may be or may not be connected with the wired or wireless connection, whatever it is. बट मोबाइल इक्विपमेंट और बीटीएस का तो जैसे हम लोग ने कल बात की है, देर विल बी अ वायरलेस कनेक्शन, बिकॉज आपका मोबाइल लेके आप कहीं पर भी घूम रहे हो बट आप बीटीएस से कनेक्टेड हो, ठीक है. सो यू कैन नॉट कनेक्ट अ वायर फ्रॉम दैट बीटीएस टू योर मोबाइल एंड यू आर रोमिंग इन योर एरियाज ओनली, बिकॉज यू हैव टू मूव आउट ऑफ दैट एरिया. जब बाहर निकलोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको तो वायर निकालना ही पड़ेगा, तो आप लेके वैसे भी लेके नहीं घूम सकते हो, ठीक है. So your the connection between or the link between your mobile equipment and your BTS is wireless connection. Okay, that is we can say radio links है, ठीक है. And it has all the component, it has all the equipment which are like antennas. अच्छा, अब आपका मोबाइल यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करेगा. आपका मोबाइल यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल क्या कर रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है. So when my mobile is transmitting the signal, then BTS must have some sort of antennas also. Okay, मेरे BTS के पास में कुछ एंटीना भी होना चाहिए so that it can catch my signals. Okay, and when BTS will send or will transmit the signal to me, then मेरे मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ तरह का एंटीना होना चाहिए जो कि उस रेडियो सिग्नल को कैच कर सके, ठीक है. सो बोथ मस्ट हैव दिस थिंग, लाइक सबसे पहली चीज एंटीनाज होना चाहिए, सिग्नल को प्रोसेस करके आना चाहिए, एम्पलीफायर्स होना चाहिए so that the upcoming signal can be boosted up and can be amplified to a extent level, to a particular level, and then it can be sent to the next level, ठीक है. तो इस तरीके से ये चीजें, ये इक्विपमेंट्स आपके BTS में होना चाहिए, ओके. BTS is connected to MS via UM interface. As we all know that the connection between the interaction between the mobile equipment, that is mobile station, and your BTS is there, but that interface is called as mobile user interface, and it is written as UM interface. Okay. So and the BSC via the ABIS interface. तो यहाँ पर ABIS interface भी हम लोगों ने देखा, तो ABIS interface where the BTS is connected to the BSC. So the connection, the links, or we can say the connectivity between the BTS and BSC is done using or by means of ABIS interface. Okay, and the connectivity between the mobile equipment and BTS, the connectivity between the मोबाइल इक्विपमेंट और वी कैन से मोबाइल स्टेशन, बिकॉज यहाँ मोबाइल इक्विपमेंट के अलावा और कोई है नहीं, तो वी कैन कॉल इट डायरेक्टली, वी कैन कॉल इट एज अ मोबाइल स्टेशन, ठीक है. जहाँ पर देखो मेरा कर्सर है, मैं जहाँ पर आपको बता रहा हूँ. सो योर मोबाइल स्टेशन एंड योर BTS आर कनेक्टेड by means of user interface, okay, UM interface, and your BTS and BSCs are connected by means of ABIS interface. You know, will be thinking in your mind that के भाई इतना क्यों रिपीट कर रहे हो सर, हम लोग समझ गए कि चलो ठीक है ये इसको कनेक्टेड है, यहाँ पर इंटरफेस है, बट मैं रिपीटेशन मेरा थोड़ा सा है नेचर, मैं रिपीटेशन बार बार इसलिए करता हूँ सो दैट के आपको भी बार बार सुनने में आए एंड देन यू जस्ट रिमेम्बर दोस थिंग एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है. तो इंटरफेस याद में रखना है आपको, मोबाइल यूजर इंटरफेस, एबिस इंटरफेस, ए इंटरफेस. यहाँ पर मोबाइल स्टेशन, देन BTS, देन BSC, देन MSC. MSC को 5 मॉड्यूल कनेक्टेड एंड इट इज आल्सो कनेक्टेड टू द पब्लिक नेटवर्क. कंप्लीट आर्किटेक्चर रेडी विद अस. The UM interface contains all the mechanism necessary for wireless transmission, and obviously they must be working on the wireless strategy, otherwise they will not be connected on the wired network. Obviously तो हमको पता ही है कि वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो दोनों के पास होना चाहिए, बिकॉज मोबाइल जो स्टेशन है हमारा वो भी क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा. तो ये कैपेबिलिटी क्या, उसके लिए क्या लगेगा, हम लोग को एंटीनाज लगेगा, एंड दोज एंटीनाज आर ऑलरेडी इनबिल्ट इन आवर ना अपने मोबाइल फोन में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है. वैसे ही आपका BTS के अंदर भी, आपके BTS के अंदर भी वो चीज एंटीनाज वगैरह होना चाहिए, सिग्नल प्रोसेसिंग की सबकी मतलब बोलते हैं ना कैपेबिलिटी होना चाहिए, सो दैट कैन रिसीव द सिग्नल, इट कैन सेंड द सिग्नल, मींस इट कैन ट्रांसमिट द सिग्नल, इट कैन रिसीव द सिग्नल, दोनों काम को करके आना चाहिए. मतलब हमारे मोबाइल स्टेशन को, हमारे BTS को, टू बोथ द एंटिटीज इट मस्ट हैव अ कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट द सिग्नल एंड टू रिसीव द सिग्नल. ओके, तो यही चीज यहाँ पर भाई साहब बोलना चाह रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज BSC. ओके, थोड़ा BTS के बारे में पढ़े हम लोगों ने, अब आते हैं BSC के बारे में. The base station controller is it manages the BTS. Okay, so सबसे पहला काम तो क्या करता है हमारा BSC, it is they are managing the BSC is managing
वेरियस बीटीएस, ओके, मल्टीपल बीटीएस को वो मैनेज कर रहा है, तो ना एक दो तीन बीटीएस उसके पास में है, ओके, जिनको मैनेज कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके भी जो मतलब जो आपका बीटीएस है जिस एरिया में ये कनेक्टेड है, तो वहाँ के भी यूजर्स का डेटा ये हैंडल करेगा, यहाँ के भी यूजर का डेटा ये हैंडल करेगा, और यहाँ के भी यूजर का डेटा ये हैंडल करेगा। ओके, तो ये बीएससी के बारे में सबसे पहली चीज, your BSc is going to handle or going to manage multiple BTS, okay, and it is again depend on the area, okay, एरिया की डेंसिटी के हिसाब से आपके बीटीएस का इंस्टॉलेशन, एंड देन बीटीएस, अच्छा हो सकता है कि बीटीएस नंबर 1 फॉर एग्जांपल, लेट मी राइट इट डाउन, यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, तो आपका जो बीटीएस जो टॉप पर आपको दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है, फॉर एग्जांपल दैट बीटीएस हैविंग अराउंड 100 सब्सक्राइबर, ओके, 100 यूजर्स आर देयर, ओके, देन उसके बाद बीटीएस 2 के अंदर 100 यूजर्स हैं, ओके, तो हो सकता है कि 100 बहुत ज्यादा हो गए, ओके, तो हो सकता है कि जो थर्ड वाला है इसको ये वाला बीएससी मेंटेन ना करें, इसको इसको किसी और बीएससी को दे दे, ठीक है, बिकॉज दिस 100 की जो कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई। फॉर एग्जांपल एक जो समझ लो आइडियल कैपेसिटी है 50 की, ओके, तो अगर 50 यूजर्स होते हैं तो बेसिकली आपका बीएससी उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है, बट यहाँ पर 100 और 100 है, तो यहाँ पर तीन हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सबके सबके कॉल्स को प्रोसेस करना और उनको फॉरवर्ड करना, उनका डेटा मेंटेन करना, उनके डेटा को रिसीव करना, फिर यहाँ पे मतलब इस हाथ से लेना, इस हाथ देना, और यहाँ से लेना और यहाँ देना, तो इनका काम ही है। तो जितने मतलब ये बेसिकली द सिंपल थिंग इज दैट के जितने वो हैंडल कर सकता है, जितने मैनेज कर सकता है उतने ही मैनेज करेगा, ज्यादा लोड नहीं लेगा, ठीक है, बिकॉज if more load is given to the BTS then what will happen, it will be overloaded and it may crash, और हो सकता है कि वो काम ना करे और सिग्नल फिर बाद में, फिर आपको पता है कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन में जब प्रॉब्लम्स होती है तो इवन यू कांट इवन फाइंड आउट व्हाट इज द इशू बेसिकली, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सो द थिंग्स आर ऑलवेज एंड नॉर्मली केप्ट ऑन, द थिंग्स आर usually kept on the normal values, okay, we are not going to have the beyond values, okay, जो extended value है उस पे नहीं जाते हैं, okay, तो जो normal values है हमेशा उस पे काम करते हैं। तो यहाँ पर BTS कितने BTS कनेक्ट होंगे दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया। सो हाँ, हम लोग बेस स्टेशन कंट्रोलर की बात कर रहे थे, तो थर्ड वन, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं BSc की। तो बेसिकली BSc मैनेजेस द BTS, ये भी हमको पता है। इट रिजर्व रेडियो फ्रीक्वेंसीज, हैंडल्स द हैंडओवर फ्रॉम वन BTS टू अनदर विद इन द BSS एंड परफॉर्म्स पेजिंग फॉर द MS। देखो बहुत बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो यहाँ पे हमारे पेन गई, ये पेन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा मोबाइल इक्विपमेंट है, ओके, वी हैव वन मोबाइल स्टेशन, ओके, मैं हूँ, चलो ठीक है, मैं हूँ, और ये चलो हमारे एरियाज है, ठीक है, दोज एरियाज हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल रीजन्स, और हर रीजन के अंदर हम लोग ने BTS इंस्टॉल करके रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे BTS इंस्टॉल है, BTS देखो मेरी लाइन कितनी टेढ़ी जा रही है, मैं टेढ़ी बना नहीं रहा हूँ लेकिन टेढ़ी जा रही है, ये मैं माउस से कर रहा हूँ। Okay, so this is region 1, this is region 2, this is region 3, 4 and region 5, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे only we will consider only 5 regions. So in our first region we have one BTS which is already installed, okay, and we have number of users, okay। मैं यहाँ पर number of user बता देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे users हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे बहुत सारे यूजर्स है, इनको सर्विस प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन कर रहा है, BTS सेवा कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला BTS इन सारे यूजर्स को कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी यू कैन सी माई सेल्फ, देखो मैंने थोड़ा सा एक डॉट बनाया हूँ, सो आई एम इन दिस रीजन राइट नाउ, ठीक है। So at time T1 morning 7 o'clock I was there in this particular BTS, I was connected to this BTS, okay, and after that what happens, मेरा कॉलेज का टाइम हुआ, मुझे आना था, तो मैं ये एरिया से, मैं खारगर से निकल के आ गया पनवेल रीजन में, ठीक है। अब जब मैं पनवेल रीजन में आया, तो पनवेल रीजन में आने के बाद में मुझे यहाँ पर भी आया हूँ, तो अब मैं कौन से BTS से कनेक्ट होऊंगा, ऑब्वियसली आई विल बी कनेक्टेड टू दिस BTS नंबर 2, ठीक है। और तो क्या होगा, whatever information which is related to my account, okay, so those information will be hand over to the that particular BTS, okay।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो राइट नाउ आई एम न्यू इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, बिकॉज मेरा होम कौन सा था, मेरा होम ये था, ठीक है। राइट नाउ आई एम इन फॉरेन नेटवर्क, ओके, फॉरेन नेटवर्क तो नहीं बोलूंगा, बट मैं थोड़े से दूसरे के नेटवर्क में हूँ, सो स्टिल आई एम कनेक्टेड, okay, but my information will be hand over from this BTS number 1 to BTS number 2, because when I'll be मैं यहाँ पर रहूँगा, I'll be there for around 7 to 8 hours, okay, so I'll be calling someone, I'll be using the network data, okay, मैं डेटा सर्विसेज यूज करूंगा, मैं किसी लैंडलाइन को फोन करूंगा, सो ये वाले बीटीएस को इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं मिलेंगी तब तक वो यहाँ से हमारी कॉल कैसे फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, जब मैं यहाँ से जब मैं ऐसे किसी को कॉल करूंगा, सो माय कॉल विल बी कनेक्टेड टू द बीटीएस फर्स्ट, देन बीटीएस से चली गया बीएससी को, देन बीएससी से चला गया एमएससी को, और अगर मैं किसी लैंडलाइन को फोन कर रहा था तो यहाँ से फिर मेरा कनेक्शन चला जाएगा किसी लैंडलाइन को, ठीक है, फिर वहां से मुझे रिप्लाई आएगा, यहाँ से मुझे आएगा, और यहाँ से होने के बाद में इसी बीएससी के पास में जाके इसी बीटीएस को मिलेगा, और इसी बीटीएस से मुझे इसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सो द थिंग्स गोज ऑन दिस पर्टिकुलर वे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि किस तरीके से काम करेंगे। अब वापस जाते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे महाशय, इट रिजर्व रेडियो फ्रीक्वेंसीज, handle the handover from one BTS to another BTS within the BSS, okay, okay, just remember we are within the BSS, okay, हम लोग इसी BSS के अंदर, हम लोग अभी कहीं गए नहीं है, तो कहाँ, ये वाले BSS के अंदर ही हम लोग अभी तक, ठीक है। तो ये BSS ऐसे 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 हमारे पास में बहुत सारे BSS हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 10, जैसे मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। तो वी मे हैव नंबर ऑफ BSS इन आर रीजन और इन आर एरियाज, ओके, सो एरिया बोल रहा हूँ मैं, मतलब रीजन में बोल सकता हूँ, सिटी में बोल सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी इज टू हाई, सो वी हैव टू मेंटेन मल्टीपल BSS फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, सो इट मे हैपन विद अस, ओके। और क्या बोल रहे हैं ये, the BSC also multiplexes the radio channels onto a fixed network connection at the A interface। तो देखो यहाँ पर हम लोग का बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे मल्टीपल बीटीएस से कनेक्शन आ रहे हैं, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली मल्टीपल, मतलब के बेस्ड ऑन द हाई डिमांड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग द सिंगल चैनल, ओके, वी आर यूजिंग सिंगल चैनल फॉर मल्टीपल सिग्नल्स, ओके। तो sorry, so the signals are coming from the signals are coming from BTS number 1, the signals are coming from BTS number 2, and the signals are coming from BTS number 3। so what it is doing, अच्छा ये हम लोग को देखने के लिए अलग अलग लग रहे हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद में तो एक ही लिंक हो रही है। तो what BSC is doing, BSC का टास्क, it is multiplexing all those multiple signal into one channel, into one medium, and it is forwarding to the MSC। you can see यहाँ पर आपका जो लिंक निकल रही है वो MSC को एक ही लिंक जा रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर भी हो रही है, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर भी हो रही है, और यहाँ से फिर आपके MSC के पास जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग हुई हमारी, उसके बाद में, और हाँ, तो ये ए इंटरफेस के थ्रू सारा काम हो रहा है हमारा, ठीक है, बिकॉज आपका जो BSC है और जो आपका MSC है, दोज two modules are connected by means of A interface, okay, that you can already see, okay। आपका BSC और आपका MSC दोनों कनेक्टेड है ये हमारे A इंटरफेस के थ्रू, ओके। यहाँ तक आप लोग को समझा क्या मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हम लोग ने खाली बस रेडियो सब सिस्टम स्टार्ट किए। रेडियो सब सिस्टम में हम लोग ने मोबाइल सिस्टम, हम लोग ने भी मोबाइल सिस्टम के बारे में पढ़े भी नहीं है, लास्ट हमारा यही आज का। और उसके पहले हम लोग का ये BSC है, BTS है, और BSS विच कंसिस्ट ऑफ BTS एंड BSC, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, थोड़ा सा अब बार बार इसको आप लोग देखते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था, आप लोग को समझ रहा है क्या हम लोग कर रहे हैं अभी? यस सर। ओके ओके, ठीक है, ओके, if you understanding good, अगर नहीं समझा then please let me know, we can repeat it, okay। हाँ, so coming to the last module of this particular radio subsystem, okay, इस radio subsystem का last module हमारा ये है
मोबाइल स्टेशन। ओके, तो मोबाइल स्टेशन मतलब आप चलो थोड़ा अंदाजा यहीं से लगा लो, मोबाइल स्टेशन बेसिकली आपका यही है, ठीक है, मतलब आपका मोबाइल इक्विपमेंट। मोबाइल स्टेशन को मैं सिंपली थोड़ा सा ऐसा ऐसा आपको मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यू आर द पर्सन, यू आर द सब्सक्राइबर एंड यू आर हैविंग योर मोबाइल इक्विपमेंट दैट यू कैन सी इन द डायग्राम। यू आर हैविंग मोबाइल इक्विपमेंट एंड वी हैव ऑलरेडी इंसर्टेड द सिम आल्सो, ठीक है, तो सिम कार्ड उसमें है, मतलब मोबाइल इक्विपमेंट है, सिम कार्ड उसमें है, और वो जो मोबाइल फोन है वो मेरे पास में है, और मैं बैठा हूँ एक कार के अंदर, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा जो सेटअप है ये बन गया आपका मोबाइल स्टेशन। गॉट इट? एक बार वापस रिपीट करता हूँ। आपके पास है मोबाइल फोन, ओके, मोबाइल फोन के अंदर है सिम कार्ड, ठीक है, वो सिम कार्ड हमने डाल दिया, सर्विसेज शुरू हो गई, ठीक है। नाउ दैट मोबाइल फोन इज बीइंग कैरिड आउट बाय मी, ठीक है, सो दैट मोबाइल फोन आई एम होल्डिंग दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन, ठीक है, वो मेरा मेरा मोबाइल है। चलो बता ही देता हूँ ना, तो ये मेरा मोबाइल, इसमें सिम कार्ड, ये मैं, ठीक है, और ये हमारी कार है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग बैठ के घूम रहे हैं, ठीक है, जो 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 सपाट। तो अब ये हमारा जो बन गया वो मोबाइल स्टेशन बन गया। मोबाइल स्टेशन, व्हाई दिस पर्टिकुलर टर्म मोबाइल स्टेशन इज देयर, because this is a moving entity, this is nothing but a moving entity, the person who is moving here and there with a mobile phone, that is mobile equipment, in that particular mobile phone there is a sim card, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आ गया। so we have a mobile station now, keeping this thing in mind we will see what a mobile station is doing. The mobile station comprises all users equipment, मोबाइल इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर कम्युनिकेशन विद द जीएसएम नेटवर्क, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके अंदर सिम कार्ड भी है, सिम कार्ड में नेटवर्क भी आ रहा है, तो सब कुछ है भाई साहब, ठीक है। After that, the mobile station consists of user independent hardware and software and subscriber identity model। तो वही बात वही है एक्चुअली, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया वही इसके अंदर है। तो मोबाइल स्टेशन कंसिस्ट ऑफ वन मोबाइल इक्विपमेंट, उसके अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, अरे हार्डवेयर तो है तभी तो मोबाइल है वो, और सॉफ्टवेयर है मतलब कि बेसिकली उसके अंदर एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, सिम कार्ड भी आ गया, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ओके, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल भी आ गया, which stores all user specific data। I'm having all the call list also, ठीक है, मेरे पास में सारे नंबर्स है, मेरे पास में सारे मैसेजेस है, मेरे पास SD कार्ड है, इंटरनल स्टोरेज है, all the data whatever is mine, so I'm having stored, okay, that is relevant to the GSM। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कॉल, मैं किससे कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे नेटवर्क प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, मेरा मैसेज सेंटर कौन सा है, पहले मैसेज सेंटर भी सेट करना पड़ता था जिसके मतलब जिसके थ्रू आप मैसेज भेज पाते, बट अभी अभी तो सारे खाली आपको एक छोटा सा एक मैसेज आता है, इंस्टॉलेशन मैसेज, वो आप रीड कर लो, मतलब रीड कर लो क्या, खाली वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। Your mobile station can be identified via the International Mobile Equipment Identity। I think all of you people having this idea about IMEI number, that is International Mobile Equipment Identity। Okay, so these are unique one and दो किसी मोबाइल इक्विपमेंट का ये नंबर सेम नहीं हो सकता। ओके, so this is related, this is specific, this is related to your instrument, okay, your equipment, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मोबाइल स्टेशन ओनली। सो क्या पढ़ा हम लोग ने आज, हम लोग ने इस आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ा सा हम लोग ने फर्स्ट सेक्शन पढ़े हैं जो कि आपका है जीएसएम के अंदर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज आरएसएस, रेडियो स्टेशन सबसिस्टम, and your radio station subsystem is been divided into basic station subsystem and your mobile station, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा रेडियो स्टेशन सबसिस्टम को डिवाइड करें तो BSS प्लस MS, ओके, BSS और MS कैसे, तो आपका BSS ये हो गया और MS ये हो गया, ठीक है। तो BSS प्लस MS या फिर MS प्लस BSS इज इक्वल टू RSS, एंड RSS के बारे में हम लोग ने आज पढ़ा, दैट इज रेडियो सबसिस्टम के बारे में। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। in the next lecture we will go beyond that RSS, that is network switching subsystem। okay, so network switching subsystem के अंदर we'll be learning about the HLR, VLR, okay, and then देखो LR ये VLR के बारे में, HLR के बारे में ऑल दैट पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर आपका ऑपरेटिंग सपोर्ट सबसिस्टम लास्ट वाला है, तो it is having more concentration on your AUC, EIR वगैरह ये ज़्यादा है।
फिर बाद में इसके रेडियो इंटरफेसेस पढ़ेंगे। तो रेडियो इंटरफेस में हमारा यूएम इंटरफेस है, एबिस इंटरफेस है और ए इंटरफेस है। सिंपल स्मार्ट, मतलब शॉर्ट में है। यू कैन सी लॉट ऑफ इंटरफेसेस आर देयर। सो ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, स्टॉप करते हैं। डोंट सेव, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।